webinar COVID-19 pandemic and its cure in Ayurveda. I ardently request all the participants to please keep your video and audio on switch off mode for a better audio and video quality of the webinar. Questions could be asked after revealing your name and affiliation through the chat box. Our host will ask questions on your behalf. I, Dr. Shelly Manan, hereby extend a very warm and hearty welcome to all the academicians, educators, participants, and colleagues on the board. I sincerely hope that the divine music which was played a short while ago has enchanted your heart, mind, body, and soul. Respected fellow members, Maharana Pratap National College, Mulana is an established postgraduate and co-educational institution affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra. Our Honorable President, Major S.P. Singh, and the committee members always inspire us to excel in all the fields and lead happy and contented lives. We strive hard to imbibe the ideals of Maharana Pratap, the legendary warrior king who inspires us to live with optimism, dignity, self-respect, and courage. Now, focusing on the issue of the day, COVID-19 pandemic, it is definitely a global health crisis of our times and the greatest challenge humanity has ever faced after World War II. The deadly virus has spread in every nook and corner of the world. The pandemic has totally changed our personal beliefs, perceptions, social relationships, economic structure, and above all, our lifestyle and living. COVID-19 pandemic has definitely given us a few important life lessons. It has brought with it a wave of negativity, terrible illness, and death. But it has also made us realize the very essence of being alive. Here are a few life lessons learned through this pandemic. Number one, washing hands is our prime responsibility, whether there is virus or not. Number two, everyone should know how to cook. Being self-sufficient to feed oneself is a very important skill today. Number three, the importance of our nears and dears in our lives. Let us reconnect to our people on virtual platforms more often. Number four, internet should be a basic right. Especially these days, it has become rather a basic necessity. Number five, working from home is a better option. Perhaps that is the reason that we have connected on this platform. Number six, learn how to be content and happy alone. Social distancing can be difficult, but it leads to self-realization. Our mind and body is a home, and we have to learn how to love and live with it. Number seven, last but not the least, learn to appreciate nature. Truly, nature has immense power and healing properties. Sunrise, sunset, rivers, streams, oceans, hills, mountains, plants, trees, flowers, rain, wind, all together make us proud for being alive. And when nature comes to the picture, how can we forget Ayurveda? Today, let us find cure for this pandemic in Ayurveda, one of the world's oldest healing system.
Moving the webinar ahead now, let us invite Dr. Rajnikant Sharma to please introduce us to the speaker of the day, Honorable Vice Chancellor, Shri Krishna Ayush University, Dr. Baldev Kumar. मेरा सादर निवेदन डॉक्टर रजनीकांत शर्मा जी से कि वे परम आदरणीय उप कुलपति महोदय डॉक्टर बलदेव कुमार जी का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें. Over to you, sir. Dr. Baldev Okay. Kumarji VC, sir. Okay, thank you very much, Dr. Shelley, and give me opportunity to introduce our Honorable Vice Chancellor, Professor Baldev Kumar, and he's a shining star in the Ayurvedic era. तो डॉक्टर बलदेव कुमार मूलतः हरियाणा के ही निवासी हैं और हरियाणा में भी अपने अंबाला जिले के मूलतः निवासी हैं. आपका लगभग 20 साल तक का टीचिंग एक्सपीरियंस में आ गया बस वहीं खत्म है ये तूने खराब करा कल. और लगभग आपका 25 वर्ष का आयुर्वेदिक क्षेत्र के अंदर रिसर्च का भी अनुभव है. आपने अपनी ग्रेजुएशन BAMS डिग्री कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1980 में ली. तत्पश्चात आप MD करने के लिए जामनगर गए और 1984 में आपने MD की डिग्री प्राप्त करी. 2002 में आपने आयुर्वेदा में PhD की डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी. उसके पश्चात आपने अपना जो कार्य है रीडर के रूप में SD आयुर्वेदिक कॉलेज चंडीगढ़ से प्रारंभ किया. तत्पश्चात आप NIA, जो कि इंडिया का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो वहां पर लगभग आपने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर के पद पर रहकर 2016 तक के आपने अपनी सेवाएं NIA में दी. तत्पश्चात आप हरियाणा में डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में डायरेक्टर बनकर आए. 2016 से लेकर 2018 तक का आपने आयुष विभाग में डायरेक्टर के रूप में कार्य किया. उसके पश्चात हरियाणा सरकार ने आपको श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में आपको कार्यभार दिया और आप 2018 से लेकर अब तक इस कार्यकाल में अपने अनुभवों के द्वारा पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि आयुर्वेद के अनन्य क्षेत्र को अपने अनुभव के द्वारा आप लाभान्वित कर रहे हैं. आपने अब तक के 55 पेपर रिसर्च पेपर लिखे हैं और 60 से ज्यादा आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, बीइंग एज ए ओरल लेक्चर और इनवाइटिंग लेक्चर के रूप में. आपने 4 बुक पब्लिश करी है. आपके मार्गनिर्देशन में अब तक 15 लोगों ने MD की डिग्री प्राप्त की है और 7 लोगों ने PhD की डिग्री प्राप्त करी है. मैं 2 पॉइंट खास तौर से माननीय कुलपति जी के समूह के इंट्रोडक्शन के रूप में रखना चाहता हूं कि माननीय कुलपति जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार भी चला रखा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किया जाए. हम सब लोगों के जानकर हर्ष होगा कि माननीय कुलपति जी हरियाणा के अंदर ही नहीं भारत के अंदर पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में भी है जिन्होंने सबसे पहले इस कोरोना पेंडेमिक की गतिविधियों को, इसके भयावह स्वरूप को पहले से जांच कर इसके प्रति आयुर्वेद में क्या कुछ किया जा सकता है उसके लिए सबसे पहला प्रयास इनके मार्गनिर्देशन में ही श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के अंदर प्रारंभ हुआ. और हरियाणा के अंदर कोविड-19 पेशेंट्स को आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है, तो माननीय कुलपति जी ने सबसे पहले अपने अनथक प्रयासों के द्वारा हरियाणा सरकार CCRS को इस चीज के लिए बाध्य किया कि वो इस प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली के द्वारा कोविड-19 के लोगों का उपचार कर सके. तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ऐसे मूर्धन्य जिन्हें आयुर्वेद का मैं एक बहुत शाइनिंग स्टार के रूप में, मैं ही नहीं बहुत लोग उनकी इन शाइनिंग स्टार के रूप में एक मानते हैं. तो हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे मध्य में उपस्थित हैं और हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा. धन्यवाद. परमादरणीय मैडम राजश्री खरे जी,
और उनकी जो भी आयोजन टीम है, प्रोफेसर रजनीकांत जी और सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जैसा कि कहा कि कोविड-19 और आयुर्वेद, तो इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में जानकारी आपको दे दूं कि कोविड-19 बीमारी की जब बात करते हैं तो मॉडर्न में भी और आयुर्वेद में भी और सभी पैथियों में ये लगभग नई बीमारी है, ऐसा करके सभी ने माना। तो जब नई बीमारी है तो उसकी चिकित्सा कहाँ से शुरू की जाए, तो इस पे विचार करना ये शुरू हुआ। एलोपैथी में भी 5-6 ड्रग्स जो पहले से किसी और रोग के लिए दी जाती थी, तो उनका इसलिए उनको देना शुरू किया कि लगभग उस प्रकार के सिम्टम पे, उस प्रकार के जो साइंस थे रोग के, तो दूसरे जो उसके पास का कोई रोग था तो उसकी चिकित्सा में उनका उपयोग करते थे। तो इसलिए कोविड-19 में भी उन्होंने HCQC और अजिथ्रोमाइसिन वगैरह ऐसी दवाइयां देनी शुरू की कि शायद इससे ठीक हो जाए। ऐसे ही हमने भी आयुर्वेद में चिंतन किया कि ये जो कोविड-19 है उसमें कौन कौन से लक्षण हैं, तो उन लक्षणों के नजदीक कौन सा रोग बैठता है। तो ऐसे आयुष यूनिवर्सिटी की एक टीम उस पर बैठी और ये विचार किया कि ज्वर करके जो अध्याय है आयुर्वेद में, ज्वर की चिकित्सा लिखी हुई है, तो ज्वर की चिकित्सा में सान्निपातिक ज्वर करके ऐसा उसका एक भेद है और उसके भी आगे कई भेद हैं। तो उनमें से किसी एक के नजदीक इसके लक्षण लगे, तो जैसे ही इसके लक्षण हमने उसके नजदीक सोच के और उस रोग की जो चिकित्सा दी जाती है आयुर्वेद में, तो उस चिकित्सा में से कुछ जो आसानी से उपलब्ध हो सके और जो पहले से मार्केट में भी उपलब्ध हो, तो ऐसी दवाई का चयन किया। और इससे भी पहले जब मार्च में ये पूरे विश्व में फैल रहा था, भारत में तो काफी कम था, तो उस समय में हमने अपनी यूनिवर्सिटी में 6 मार्च को एक सेमिनार किया जिसमें कोविड-19 की समझदारी व्यक्तियों में बढ़े और अपना जो स्टाफ है, पूरा फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, उन सब में उसकी समझदारी बढ़े, अवेयरनेस आए, तो इसके लिए एक सेमिनार किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने सरकार की तरफ से एक निर्देश आया कि यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन वार्ड ऐसा बन सकता है, तो तैयारी के लिए एक लेटर आया था, तो हमने वो भी तैयारी अपने यहाँ करके रखी। 18 मार्च को हमने यहाँ पे एक वार रूम की स्थापना की यूनिवर्सिटी में। उस वार रूम का उद्देश्य हमने ये रखा क्योंकि उस समय में सोशल मीडिया पे, टीवी पे बहुत सारी जानकारियां अलग अलग लोग कोविड के बारे में दे रहे थे, तो हमें ये लगा कि इसमें सही जानकारी जो WHO से आ रही है और जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है तो वहां से, और हमारा जो आयुष मंत्रालय है केंद्र में वहां से, और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय से, आयुष मंत्रालय से जो जानकारी नीचे तक पहुंचाने की बात आए, तो उसको उसी रूप में, बिना उसमें कोई अपनी तरफ से कोई शब्द जोड़े, तो ऐसी जानकारी नीचे व्यक्तियों तक पहुंचे। तो इसके लिए हमने आसपास के जितने भी धार्मिक संगठन थे और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, शैक्षणिक संस्थाएं थी, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, NIT है, तो ऐसे इनके प्रमुख लोगों को हमने संपर्क किया और प्रशासन से भी संपर्क किया। यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, DC साहब हैं, तो उन सबको भी हमने उद्घाटन पे बुलाया। ऐसा वार रूम में हमने 4 प्रकार की टीम बनाई, उसमें जिला स्तर पे काम करने वाले 4-5 लोग उसमें रखे, तो जिला की जानकारी पूरी कि कोविड के बारे में क्या क्या, कितने लोग पॉजिटिव हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, तो ऐसा एक, और एक पूरे स्टेट लेवल पे एक टीम बनी, ऐसी एक पूरे नेशनल लेवल पे थी और एक इंटरनेशनल, 4 टीम बना करके हमने काम शुरू किया। और पूरे देश में जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, जितनी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको भी हमने वो लिटरेचर अपना भेजा, उनको संपर्क किया कि नीचे तक ये जो सरकार की, WHO की जानकारी है वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, तो ऐसा हमने प्रयास किया। उसी दौरान फिर ये समझ में आया कि इसकी मारक क्षमता जो है कोविड-19 की, वो भारत में काफी कम थी। हम सब जानते हैं कि अभी तक भी वो 4-4.5 हजार के अंदर मृत्यु हुई है पूरे देश भर में, वो भी पिछले मार्च फरवरी से लेके अब तक। तो जब इस सिनेरियो को देखा जाता है तो ये समझ में आया कि बाकी रोग तो इससे भी ज्यादा मारक हैं, और यहाँ पे इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ जो इसका कोविड-19 का वायरस है उसका कोई अलग वेरिएंट होगा,
या भारत के लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा होगी या परिस्थितियां अनुकूल होंगी यहाँ पे थोड़ी, तो इसलिए यहाँ पे मारक क्षमता उसकी कम होने से तो उसका जो आतंक है वो समझ में आया कि ये कहीं टेस्ट करने से, जो टेस्ट करके जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, आप अपने आसपास के कोविड हॉस्पिटल में यदि देखेंगे तो उनको बहुत लक्षण नहीं है, उनको कोविड पॉजिटिव होना बिल्कुल वो स्वस्थ व्यक्तियों की तरह, हम और आपकी तरह वहाँ हॉस्पिटल में हैं, उनको कोई ज्वर नहीं है, कोई खांसी जुकाम ऐसा कुछ नहीं। तो जब ये लक्षण उसके नहीं है, केवल कोविड पॉजिटिव है और कुछ माइल्ड सिम्टम को लेके थे कुछ पेशेंट, तो बहुत कम परसेंटेज ऐसी थी जिनको सीवियर कुछ लक्षण थे और डेथ तक हुई, तो उनकी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन उसके सामने ये जो आतंक उसका देखा जाए पूरे देश भर में, जो पूरी इकोनॉमी को ठप कर दिया गया, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं निर्णय बाहर के देशों को देख के, वहां की जो मृत्यु दर थी उसको देख करके शायद लिए गए। अब थोड़े निर्णय बदलने की जरूरत है। हमने जब इसकी चिकित्सा की बात की तो 6 अप्रैल को हरियाणा ऐसा पूरे देश में पहला राज्य था जिसने कोविड 19 के जो चिकित्सा केंद्र सरकार ने बनाए थे या हॉस्पिटल थे जिनमें एडमिट थे पेशेंट, तो ऐसे उस समय में हरियाणा में 4 ही जिले थे, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह और पलवल। तो वहां पे पेशेंट थे 8, 10, 12 ऐसी संख्या में, और पूरे हरियाणा में 2, 3, 1 इस प्रकार के पेशेंट कहीं कहीं पे थे। तो इसलिए उन 4 जिलों में ही सबसे पहले हमने काम शुरू किया, सरकार की अनुमति ली और एक पूरा उस पर प्रोटोकॉल तैयार किया। उस प्रोटोकॉल को हरियाणा सरकार को भेजा, सरकार ने उसको केंद्र सरकार में हमारा CCRS करके एक अनुसंधान संस्थान है, तो वहाँ की टीम ने उसको वेट किया और उसको अनुमति दी कि इस प्रयोग को किया जा सकता है। फिर वही जो पूरा प्रोजेक्ट था वो हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक में भी गया और वहाँ की भी जो एथिकल कमेटी है उसने उसको देखा, और उस एथिकल कमेटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के जो डायरेक्टर हैं अभी, उनको भी रखा गया, और केंद्र में एक डायरेक्टर जनरल है आयुर्वेद की संस्था के, उनको रखा गया। तो ऐसा करके उस टीम ने भी उसको वेट करके कहा कि ये निरापद है, इससे कोई हानि नहीं होगी, इस प्रकार का उनका भी मत रहा और उसको पास किया। तो 4 जिलों में हमने शुरू में काम शुरू किया और ये इस प्रकार का प्रोटोकॉल बनाया था उस समय कि एलोपैथी दवा जिन पेशेंट्स को जो चल रही है उसके साथ साथ आयुर्वेद की दवा देके देखी जाए पहले कम पेशेंट में, उसके बाद प्रयोग अगर अच्छा रहता है तो फिर उसको ज्यादा पेशेंट में दिया जा सकता है। तो ऐसा करके हमने एंट्री की और आप देखिए कि गुड़गांव में पहले शुरुआत हुई थी गुड़गांव से, दूसरा जिला था फरीदाबाद, वहां के ESI हॉस्पिटल में चल रहा है। तो इनमें और बल्कि नूह में भी, तो इन तीनों में ये देखा गया कि जिस ग्रुप को हम आयुर्वेदिक दवा दे रहे थे, तो लगभग जो पहला टेस्ट उन्होंने 5 दिन में 7 दिन में ऐसे किया, तो 5 दिन में टेस्ट करने पे वो नेगेटिव पाए गए। फिर एक टेस्ट और करते हैं एक दिन छोड़ के, तो 7वें दिन भी वो नेगेटिव पाए गए दूसरे टेस्ट में, तो उनको घर भेज दिया गया। और केवल जिन पे एलोपैथी दवाई चल रही है वो भी 5 से 7 दिन में कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ उनमें से 10-15 दिन तक भी जा रहे हैं, कुछ 20 दिन तक भी जा रहे हैं जो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी एक मोटी सी पिक्चर समझ में आई कि भी जिनको आयुर्वेदिक दवाई भी साथ साथ दी गई थी तो वो 5 से 7 दिन में नेगेटिव हुए। तो फिर हमने प्रशासन को निवेदन किया कि ये जो प्रयोग है वो जब एलोपैथी दवा के साथ आयुर्वेदिक दवा देने से सफल रहा है, लगभग एक मोटा सा रुझान इस तरह का है, तो केवल आयुर्वेदिक दवाइयों का एक ग्रुप बना दिया जाए और फिर देखा जाए कि ये उसमें भी दवा ये काम करेगी, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ये जो सिम्टम है कोविड के, ये हमारे उस सान्निपातिक ज्वर से मिलते हैं, तो इसलिए हम तो केवल इस ज्वर की चिकित्सा कर रहे हैं ज्वर मान के, तो ये ठीक भी हो रहा है। तो फिर मेडिकल कॉलेज रोहतक में शुरू हुआ, तो वहां पे भी 35 पेशेंट को ये दवा दी गई और वो भी लगभग 5 दिन में ऐसे नेगेटिव हुए। तो जिन पेशेंट्स को नहीं दी गई थी रोहतक में, तो वो 10 दिन तक 15 दिन तक नेगेटिव नहीं हुए थे। तो ऐसा एक कंपैरेटिव वहाँ पे ये स्टडी सामने आई। तो इस बीच में यानी 6 अप्रैल को हमारा हरियाणा ने चिकित्सा में एंट्री की थी। 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं दिल्ली के, उनमें इन कोविड पॉजिटिव और कोविड
पॉजिटिव प्लस माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट्स को वहां पे दाखिल किया जाए और आयुर्वेदिक इंटरवेंशन उनकी शुरू की जाए। तो वहां पे लगभग 200 पेशेंट्स को एडमिट किया गया और वहां पे सारे ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 10 दिन में वहां पे टेस्ट हुआ था पहला। अगर वो टेस्ट पहले हुआ होता 3 या 5 दिन में तो शायद वो 3-5 दिन में नेगेटिव हो जाते, पर वहां की योजना इस प्रकार की थी कि 10 दिन में पहला टेस्ट किया, तो इसलिए वहां भी वो नेगेटिव आए। तो वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है समाज के सामने और सरकार के सामने कि केवल आयुर्वेदिक दवा से वो 10 दिन में नेगेटिव हुए हैं अगर पेशेंट, तो इन सारे पेशेंट्स को पूरे देश भर में जो कोविड पॉजिटिव हैं और माइल्ड सिम्टम वाले हैं उन सबको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 5 से 7 दिन में नेगेटिव हो सकते हैं। ऐसा एक दिल्ली की स्टडी से और ये हरियाणा की जो इंटरवेंशन की इससे पता चलता है। तो इसलिए हरियाणा सरकार को तो हमने लिख ही दिया था पहले ही, 20 दिन पहले ही मैंने लिख दिया कि भी ऐसा अलग से आयुर्वेदिक कॉलेज में या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में या वहाँ भी जो मेडिकल कॉलेज के वार्ड हैं उसमें भी दाखिल करके, ताकि वहाँ दूसरी सुविधा जो इमरजेंसी सुविधा है वो भी वहाँ पे मिलती रहे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो एक वार्ड केवल आयुर्वेद का बना दिया जाए और उसमें आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल से वहाँ चिकित्सा हो तो काफ़ी लाभान्वित होंगे लोग। और ये जो एक थोड़ा सा उसमें ये भी ध्यान में आता है कि ये टेस्ट यदि कम कर दिए जाएं, टेस्ट ना करें और जो कोविड पॉजिटिव है उसको घर में ही क्वारंटाइन करने के लिए बोल दिया जाए कि, तो एक तो उसको जो हॉस्पिटल का फोबिया होता है, हॉस्पिटल में दाखिल होकर लगता है कि मैं बीमार हो गया, तो अगर उसको कोई लक्षण नहीं, तो दिल्ली सरकार का वो भी निर्णय सबसे पहला था कि उन्होंने कोविड पॉजिटिव पेशेंट से ऐसे एक एफिडेविट लिखवा के कि भी आप घर पे सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे खुद को और वहाँ आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, घर में भी एक रूम में 14 दिन के लिए रहेंगे। तो ऐसा वहाँ सबसे पहला डिसीजन लेके और वो सफल भी रहा। तो ऐसा ही सभी जगह पूरे देश भर में उसको करने की जरूरत है। तो ये जो दिल्ली के पेशेंट थे वहां का भी एक अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ कि 2 पेशेंट हमें अपने ऐसे जानकारी से मिले, तो उसमें हमने केवल आयुर्वेदिक दवा दी। उन्होंने सामने से कहा कि हम आयुर्वेद की दवा ही लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे, आप हमें दीजिए। तो 2 पेशेंट हमारे वो भी 7 दिन में जो उनकी रिपोर्ट आई थी तो वो उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ कंक्लूजन नहीं निकला था। तो उन्होंने कहा अभी ये कुछ निर्णय नहीं हो सका कि नेगेटिव हुए या पॉजिटिव है। तो फिर से 10-12 दिन में फिर से एक टेस्ट हुआ था तो फिर वो नेगेटिव आए। तो यानी ऐसे तो वो 5 से 7 दिन में ही हो गए थे। अभी खेतानाथ कॉलेज है आयुर्वेद का नारनौल में, तो वहाँ पे 21 पेशेंट है हमारे, वहाँ पे आयुर्वेदिक दवा ही उनको चल रही है। तो वो 21 पेशेंट केवल आयुर्वेदिक दवा से वहाँ पे ठीक होके अपने घर, उसमें से 17 जा चुके हैं। तो ऐसा भी एक वहाँ भी यानी हरियाणा में भी केवल आयुर्वेदिक दवा से ऐसे 3 पेशेंट गुड़गांव में मिले थे, तो उनको भी केवल आयुर्वेदिक दवा, वो भी घर पे। अभी हरियाणा में भी ये निर्णय ले लिया गया कि क्वारंटाइन घर पे ही करेंगे, तो वो 3 पेशेंट वो भी हमारे ठीक हुए। तो ऐसा ये तो एक मोटा मोटा रुझान मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक दवा से 5 से 7 दिन में नेगेटिव हो जाएंगे पेशेंट। और भी यदि, ये तो केवल 2 दवाइयों की बात की कि जो हमने प्रोटोकॉल में डाली थी, वो भी इसलिए कि एलोपैथी दवा के साथ साथ जब दवाई देंगे तो वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए केवल 2 दवाइयां हमने चुनी थी। महासुदर्शन घनवटी करके एक टेबलेट है और साथ में एक षडंग पानीय करके एक काढ़ा दिया था हमने। पानी जैसा है, उसमें काढ़े जैसा, ऐसे कोई कड़वा टेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल वो पीने जैसा स्वादिष्ट जल लगता है। तो वो हमने पूरे दिन भर में कि पेशेंट जितना सुबह से लेके शाम तक जितना पानी का उपयोग करता है पीने के लिए, तो उस दवाई वाले पानी को पिए। तो वो टेस्टी भी है पानी पीने में और पूरा दिन भर पीने से उसको ठीक प्रकार से उसकी धातुओं में जो आम है उसका पाचन हो जाता है, भूख ठीक से लगती है और ज्वर ठीक हो जाता है उससे। तो ऐसा हमने ये प्रयोग किया। तो अभी अपने को जितने भी श्रोतागण इस बात को सुन रहे हैं, तो आसपास जितने भी अपने को कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स ऐसे लगते हैं और वो सेल्फ क्वारंटाइन है, तो आप अपनी जगह पे भी ये षडंग पानी है आराम से बाजार में उपलब्ध है, और जो महासुदर्शन घनवटी है वो भी उपलब्ध है दवाई की दुकानों पे। फिर भी आप कहीं भी आसपास में जो भी आपके गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है या कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, 10 कॉलेज ऐसे, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, तो इसके आसपास में यहाँ भी संपर्क करेंगे तो यहाँ से भी आपको दवाई पहुँचा दी जाएगी और खुद भी आप ये दोनों दवाइयाँ
खरीद के मार्केट से, और वहीं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे तो उनकी देख रेख में उसको लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से मतलब मोटी सी बात यह है कि उसका बहुत ज़्यादा आतंक करके जो एक पेंडेमिक और एक बहुत बड़ा फोबिया क्रिएट हुआ है, उसको अवॉइड करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है लोगों को कि उसकी मारक क्षमता उतनी नहीं है। तो इन्फेक्शन वो यानी टेस्ट जब कर लेते हैं तब पता चलता है। अभी एक ऑफिसर के गार्ड और उनका ड्राइवर कल पॉजिटिव आ गया, तो इससे पहले तो वो उनके साथ ही थे। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आ गया, ऐसा बोलने पे वो दूरियां बढ़ जाती हैं, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया। तो तब तक तो वो ठीक थे, उनमें भी कोई सिम्टम नहीं थे, इस ऑफिसर में भी कोई सिम्टम नहीं थे। तो ऐसा यानी ये टेस्ट करके पॉजिटिव हुआ, फिर अपने को एक उसको अछूत हो गया और पूरा डर लगने लगता है उस व्यक्ति से। तो वो डर लगने की ऐसी कोई सावधानियां जरूर अपने को बरतनी है। तो सावधानियां बरतते हुए इस रोग का जो पूरा एक फोबिया है उसको हटाने की जरूरत है समाज से। और कई जगह तो शुरू शुरू में हॉस्पिटल में जो इनके साथ व्यवहार हुआ, वो आप सब लोगों तक पहुंची होंगी बातें, कि वो दूर से ऐसे खाना भी दूर से ऐसे उसको फेंकना, तो उस प्रकार की घटनाएं भी कहीं पे देखने को मिली। तो उनसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूरी मेंटेन करना, तो वो सब भी ठीक नहीं है। तो वो एक मतलब एक दूसरे से फैलने वाला रोग जरूर है, पर वो मारक नहीं है, ये भी अपने को समझना चाहिए। और एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उससे एक जो सामान्य व्यवहार है उनके साथ वो रखना चाहिए अपने को। तो इतनी बात तो कोविड के संबंध में मुझे कहनी थी आपको। अब ये जो आयुर्वेद की बात है वो थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ कि ये जो कोविड-19 ऐसा करके नया रोग था, तो नए रोग की चिकित्सा कैसे की जाए, क्या अप्रोच रहे, इसका आयुर्वेद में बड़ा पहले से ही हजारों साल पहले जब ये आयुर्वेद की रचना की गई, तो महर्षियों ने तभी से उसका निर्देश किया था कि नया रोग आए तो कैसे अप्रोच करना। यानी उस समय भी उन्होंने जो हमें लिख के दिया, चरक संहिता करके हमारा एक मेन ग्रंथ है, तो उस मेन ग्रंथ में भी जो अध्याय चिकित्सा के लिखे गए वो केवल 30 है। तो अगर यूं मोटा सा कहा जाए तो 30 रोगों की चिकित्सा लिख रखी है केवल। तो उस समय भी 30 रोग रहे होंगे ऐसा तो है नहीं, तो रोग तो बहुत रहे होंगे संख्या में, लेकिन वहां पे एक सिद्धांत रूप में ये लिखा गया कि ये जो मैं 30 चैप्टर का वर्णन कर रहा हूं, और जो पैथोलॉजी के चैप्टर लिखे वो केवल 8 थे, तो 8 पैथोलॉजी लिखी, चिकित्सा 30 रोगों की लिखी। तो इसके पीछे उन्होंने कहा कि भी सैद्धांतिक रूप से यदि आपने इन 8 पैथोलॉजी को ठीक से समझ लिया, तो सारे प्रकार के रोगों में ये 8 प्रकार की पैथोलॉजी से ही शुरुआत होती है। तो शुरुआत जहां से होती है वो, और फिर वो कैसे कैसे डेवलप होके आगे क्या क्या लक्षण अलग अलग आते हैं किस रोग के, तो वो समझने की जरूरत है एक रूट कॉज को। तो रूट कॉज उन्होंने समझाया, और ये कहा कि कोई भी नया रोग अगर आया तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो उस सिद्धांत के माध्यम से करेंगे। तो सिद्धांत उन्होंने वहां पे 8 पैथोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी बता के, और पूरे रोग उसमें कवर हो जाएंगे, इस प्रकार का एक निर्देश किया। कि जितने वहां एक श्लोक भी लिखा कि न सर्वेशम रोगा नाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति, कि जितने दुनिया भर में जितने रोग होंगे उन सब का नामकरण करना, कि ये कोविड-19 है, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, ऐसे नामकरण करना ये जरूरी नहीं है। और ना वो बुक्स में आपकी हो सकता है पहले से लिखा हुआ, तो कहीं ना कहीं नया रोग होगा, नई इन्फेक्शन होगी। तो इस बेसिक पैथोलॉजी को समझते हुए फिर आपको काम करना है। उस बेसिक पैथोलॉजी के पीछे भी उन्होंने जो सिद्धांत लिया वो ये था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्तियां हैं, उस ब्रह्मांड का छोटा स्वरूप हम हैं। तो हम छोटा स्वरूप हैं, तो वो सारे तत्व जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं वही हमें भी चलाते हैं। तो जो परिवर्तन इस ब्रह्मांड में आते रहते हैं, उन परिवर्तनों का असर हम पे आता है। तो ऐसा करके उन्होंने कहा कि इस पूरे जो मुख्य रूप से 3 ऐसी चीजें हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं, वो है सूर्य की जो शक्ति है, उष्णता है, और चंद्रमा की जो शक्ति है, शीत गुण प्रधान जो चीजें हैं, और एक वायु, जो इन दोनों के बीच में जब वो सूरज की तरफ चली जाती है तो वायु भी गर्म हो जाती है, और जब वो चंद्रमा की तरफ जाती है तो वो शीत हो जाती है वायु। तो वायु का गुण तो बदलता रहता है, वो चंद्रमा की तरफ जाती है शीत हो जाती है। तो इस प्रकार तीसरा तत्व बीच का है वायु। तो ऐसे 3 तत्वों की कल्पना सूर्य, चंद्रमा और वायु,
और उन्हीं के अनुरूप शरीर में वात, पित्त और कफ ऐसे 3 इनके प्रतिनिधि के रूप में माने। और ये कहा कि ये वात, पित्त, कफ यदि शरीर में बैलेंस रूप में रहे, अगर इनमें उतार चढ़ाव नहीं रहा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और यदि इनमें इम्बैलेंस हुआ किसी भी कारण से तो फिर ये बीमार हो जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए हमारे यहाँ जो कल्पना की रोगों की, तो आगंतुज रोग जो ये जैसे अभी कोविड की इन्फेक्शन है, बाहर से होने वाला रोग है, तो वातावरण से होने वाला रोग है, तो इनको आगंतुज बाहर से कहा। और एक निज जो शरीर से अपने अंदर से होने वाले कुछ रोग बताए, तो अंदर से होने वालों में ये वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस हो जाता है तब। और बाहरी तत्व भी जब शरीर पे असर करता है तो इन्हीं वात, पित्त, कफ में अल्टीमेटली इम्बैलेंस पैदा करता है। तो फिर से ट्रीटमेंट तो वात, पित्त, कफ को ध्यान में रख के ही करनी है, भले ही वो बाहर से वायरस ने या किसी बैक्टीरिया ने हम पे अटैक किया, इन्फेक्शन की, तो अंदर जो चेंजेज आएंगी, जो अंदर सिम्टम आएंगे, वो वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस के ही आते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद ने कहा कि बाहर के तत्व के कारण जो अंदर रोग हो रहा है वो भी बैलेंस तो वात, पित्त, कफ का ही बिगाड़ रहा है। तो इसलिए वात, पित्त, कफ को ही बैलेंस करने की चिकित्सा मुख्य रूप से अपने को करनी रहती है। तो इसलिए इन्फेक्शन कोई भी हो, चिकित्सा वात, पित्त, कफ को बैलेंस करने की करनी है। तो इसलिए हमारे लिए वो कोविड-19 की चिकित्सा के लिए जो चिकित्सा हमने चुनी, तो वो उसका आधार वही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद ही थे। तो ऐसा करके हमने ये किया। अभी थोड़ा और अगर इसमें कहना हो तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, जैसे पूरे वर्ल्ड में अभी वेलनेस का कंसेप्ट अभी आप सुन रहे होंगे कि वेलनेस क्लिनिक खोलो, वेलनेस का कंसेप्ट है। आयुर्वेद तो वेलनेस के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है। तो ये जो बात कही जा रही है WHO के द्वारा या सरकारों के द्वारा या हेल्थ डिपार्टमेंट्स के द्वारा कि आयुर्वेद वेलनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, इतना उन्होंने स्वयं मानना शुरू किया। तो हमारा कहना है कि ये वेलनेस के क्षेत्र में तो है ही है, क्योंकि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन, 2 उद्देश्य से आयुर्वेद लिखा गया था। तो पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो उसको मेंटेन करके रखना स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को। और दूसरा, यदि उसको अगर रोग हुआ तो रोग को भी ठीक करना, ये दूसरा उद्देश्य रखा था। तो इसलिए केवल वेलनेस के क्षेत्र में आयुर्वेद काम करता है ऐसा नहीं है, रोगों को भी ठीक करने के क्षेत्र में आयुर्वेद उतना ही अच्छे प्रकार से काम करता है। अभी मैं बहुत लंबी लिस्ट आपको बताऊंगा कि जहां एलोपैथी में दवाई काम नहीं करती, पूरी जिंदगी भर उन रोगों में दवा लेनी पड़ती है, वहां आयुर्वेद की चिकित्सा करवाने से जल्दी 2 महीने में, 1 महीने में ऐसे व्यक्ति ठीक हो गए, और वो दवाई पूरी जिंदगी जो वो लेता है तो उससे छुटकारा उसको मिल जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उतना ही कारगर है आयुर्वेद, यदि उसको ठीक से आप समय से चिकित्सा करवाने के लिए आयुर्वेद में आते हैं। तो अभी कुछ बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। जैसे दिनचर्या का एक सिद्धांत है कि व्यक्ति सुबह कब उठे और सोना कब है, तो पूरी दिन के बीच में उसकी चर्या बता रखी है, वो कैसा कैसा रहे। और दिन की चर्या भी कैसे कि ऋतुएं बता रखी 6, तो 6 ऋतुओं में उस दिन की चर्या क्या हो, ग्रीष्म ऋतु के दिन में वो क्या कैसा कैसा करे, तो किस प्रकार का भोजन करें। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, तो ये सिद्धांत हैं। तो 6 ऋतुओं में हर एक ऋतु में अपना भोजन का परिवर्तन होना चाहिए, आहार का परिवर्तन होना चाहिए कि इस प्रकार का भोजन इस ऋतु में करना है। तो ये हम भूल चुके हैं। जो जिस ऋतु में फसल होती है, जो अनाज होता है, वही उस ऋतु में खाना होता है। तो हम वो पूरी राउंड द ईयर हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम अपने प्रदेश में यदि वो नहीं होती, अपने एरिया में यदि नहीं होती, तो हम उसको बाहर से लाके खाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का असर है कि गुजरात के पोहा और मान लो वहाँ पे कुछ आइटम वहाँ के बनते हैं, तो वो हम यहाँ हरियाणा में खाने लगे। तो ये कहीं ना कहीं खान पान बदलने से जो रोग हो रहे हैं, तो वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको बोल रहे हैं, तो ऐसा भी एक रोगों का कारण है। एक मूल सा सिद्धांत जो आयुर्वेद में कहा कि व्यक्ति जिस जगह पे पैदा होता है, उस जगह पे पैदा होने वाली जो भी औषधियां हैं, जो अन्न है, जो फसलें हैं, वो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती हैं उसके स्वास्थ्य के लिए। तो एक मोटा सा प्रिंसिपल है, चाहे फिर वो व्यक्ति
गुजरात का रहने वाला हो तो गुजरात वाले पे भी यही नियम लागू होता है कि उसके आसपास जो वनस्पतियां उगती हैं वो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं ज्यादा। तो इसलिए जिन आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करना है तो वो भी अपने इर्द गिर्द के क्षेत्र से उगी हुई होंगी तो ज्यादा प्रभावकारी होंगी। तो ये एक सिद्धांत है। फिर कहा कि जो कुछ वेग बताए हैं पूरे शरीर में कि भी जैसे यूरिन का वेग किसी को आया कि भी यूरिन पास करने के लिए प्रेशर है तो व्यक्ति काम में लगा रहता है। कहीं क्लास में टीचर है तो वो क्लास शुरू होने से पहले दिमाग में आया नहीं कि जाके आना है तो क्लास पूरी 1 घंटे तक चलेगी। तो उस समय ये जो हम रोक के रखते हैं वेगों को, तो चाहे फिर वो यूरिन का वेग हो, चाहे लैट्रिन का वेग हो, चाहे किसी को जंबाई आती है तो जंबाई को हम रोकने का प्रयास करते हैं, कई बार आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हैं, कई बार डकार जिसको बोलते हैं उद्गार बोलते हैं तो उद्गार को रोकने का प्रयास हम करते हैं, कई बार हवा खारिज जिसको बोलते हैं अपान वायु का त्याग करते हैं तो उसको व्यक्ति आसपास में बुरा लगे उससे शर्म के कारण हम लोग नहीं त्याग करते। तो ऐसे भी बहुत सारे शरीर के जो वेग इनको हम बोलते हैं तो अर्जीज इनको बोलते हैं। तो ये अगर वो उपस्थित हुई, अगर उसको त्याग करने की शरीर में इस प्रकार का यानी सेंसेशन हुई तो वो सेंसेशन को उसी समय पूरा करना होता है। उसको रोकने से रोग होते हैं बहुत सारे। तो वो एक कल्पना की। ऐसे ही फिर कल्पना की कि ये जो हम लोग केवल शास्त्र में या कथाओं में पढ़ते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को स्नेह करना चाहिए, तो इस प्रकार की जो सद्वृत्ति की बातें हैं, आचार रसायन इनको आयुर्वेद में कहा, तो ये करने से भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। तो क्रोध ना करना, तो क्रोध के वेग को धारण करना, क्रोध ना करना, तो इस प्रकार की बात। तो ये सदाचार में, सद्वृत्ति में आचार रसायन का इसका वर्णन कर रखा है आयुर्वेद ने। और सबसे बड़ी बात है कि उसने कहा कि आहार के रूप में जो हम सेवन करते हैं, तो आहार के रूप में हम वायु, जल और ये जो सॉलिड फूड है आहार, तो उसका सेवन करते हैं। तो वायु, शुद्ध वायु का सेवन करना, शुद्ध जल का सेवन करना, तो जल के सेवन का पूरा विधान बता रखा है कि जल, उष्ण जल कब सेवन करना है, शीत जल का कब सेवन करना है, कितनी मात्रा में सेवन करना है। तो ये जो सुबह सुबह बहुत 1 लीटर पानी बताने लगे लोग कि 1 लीटर सुबह उठते ही पानी पीना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, विबंध दूर हो जाएगा, इस प्रकार की जो बात, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति के अनुकूल सोच के फिर जल का सेवन करना। तो इसमें आहार का जो सेवन करते हैं कि आहार व्यक्ति सेवन कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम है। आहार सेवन करने का सबसे पहला नियम यह है कि जीर्णे अश्नियात। जीर्णे अश्नियात का मतलब है कि अगर पहला खाया हुआ भोजन आपको पच चुका है दूसरे समय में, तो तब आपने दूसरे समय का भोजन सेवन करना है। अगला है मात्रावत अश्नियात। तो मात्रावत अश्नियात, तो मात्रा उसकी कितनी हो, जो भोजन आपने लिया उसकी क्वांटिटी कितनी हो। तो क्वांटिटी केवल उम्र के आधार पर तय नहीं होती कि एक व्यक्ति अपनी क्लास में दूसरे 4 लोग पढ़ रहे हैं, 4 दोस्त हैं और मैस की टेबल पे जब बैठते हैं तो वो जितनी खाते हैं उतनी मैं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा अपने साथियों को कि जो हमसे ज़्यादा डाइट है जिनकी, उनका वेट कई बार हमसे कम होता है बहुत ज़्यादा। हम कम भी खाते हैं तो भी हम वेट गेन कर रहे होते हैं। तो ये सारा हमारी प्रकृति जो है उस पर डिपेंड करता है, हमारे शरीर का स्वभाव है एक, तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना हमें चाहिए पूरे दिन में खाने के लिए। तो इसलिए आहार मात्रा इसको तय करना, तो इसको तय करने का पैरामीटर दे रखा है अग्नि। तो आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणीय ऐसा कहा। तो अग्नि बल अपेक्षणीय मतलब जो पाचक अग्नि है हमारी, अगर वो 1 रोटी सुबह खाने से दोपहर 2 बजे तक वो एक ही नहीं पचती हमारी, तो इसलिए वो एक ही सफिशिएंट है, उससे भी कम करने की जरूरत है। और यदि हम 4 रोटी खा के दोपहर को 2 बजे पूरी भूख लगती है और यदि ना खाया तो पेट में कुछ बेचैनी होगी, तो इस प्रकार की भूख जोरदार अगर लगती है तो फिर से हम भोजन सेवन करते हैं, रात की फिर से भूख लग जाती है, तो इसका मतलब अग्नि हमारी बहुत तेज है। तो ऐसे अग्नि का पैरामीटर है, उसमें किसी उम्र का या आसपास में बैठे हुए व्यक्ति को देख के तय नहीं करना होता। तो अपने शरीर की स्वयं का अवलोकन करना है कि मुझे भूख
कितनी है, तो ऐसा करके। फिर है स्निग्धम अश्नियात, तो ये जो अभी कंसेप्ट चला कि घी नहीं खाना है, तो आयुर्वेद में कहा कि स्निग्धम अश्नियात, तो वो भोजन जो आप सेवन करें वो थोड़ा स्निग्ध हो, उसमें स्निग्धता रहे, घी तेल की मात्रा उसमें रहे थोड़ी बहुत। तो इसलिए भले ही आधा चम्मच वो दाल सब्जी में डाल के या रोटी चुपड़ के खाते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए, बिल्कुल सूखी रोटी और बिल्कुल ऐसा नहीं। तो स्निग्धम अश्नियात। फिर कहा कि उष्णम अश्नियात, तो उष्णम अश्नियात कि गरम गरम ताजा भोजन करना है, बासी भोजन का अपने यहाँ निषेध किया गया है, बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना, तो ऐसा उष्णम अश्नियात। फिर कहा कि वीर्य अविरुद्धम अश्नियात, तो वीर्य विरुद्धम क्या कि भोजन जो है, जैसे आजकल केले का शेक बना के हम लोग लेते हैं, तो ये साफ मना किया इस बात को कि दूध और फल इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता। और इसको यदि आप नेट पे भी पढ़ेंगे कि जो उसका दूध की जो प्रोटीन है और फलों का जो फ्रक्टोज है उसका आपस में साथ मिला के लेने से क्या नुकसान है, वो शायद साइंस में भी उन लोगों ने भी कुछ लिख रखा है। लेकिन अपने यहाँ दूध और फल ऐसा सेवन करने का साथ साथ निषेध है। ऐसे ही मीट अगर कोई लेता है तो मीट के साथ दूध का निषेध है, दूध और नमक का निषेध है। मछली यदि कोई खाते हैं, फिश खाते हैं, तो दूध उसके साथ नहीं लेना, ऐसा निषेध है। तो ऐसे बहुत प्रकार के अन्न बता रखे हैं जिनको एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन उनका सही नहीं बैठता, तो वो भी ध्यान रख के खाना चाहिए व्यक्ति को। फिर कहा कि जैसे ही आप भोजन करते हैं तो जो स्थान है आसपास का वो साफ सुथरा पवित्र ऐसा दिखे, तो ईष्ट देशे अश्नियात, तो ईष्ट देशे की जो स्थान है वो पवित्र हो, साफ सुथरा हो। ईष्ट उपकरणे, तो जिन पात्रों में आप भोजन कर रहे हैं तो वो पात्र जो हैं वो भी अच्छे हों, सुंदर हों, आपके मन के अनुकूल हों। ऐसा ना लगे आपको कि ये किस में डाल के दे दिया खाना, ऐसा। तो अट्रैक्टिव हों, अलग अलग प्रकार के हों, कांच के, चीनी मिट्टी के हों तो और अच्छा है। तो ऐसा करके वो पात्र भी कैसा हो इसका भी वर्णन कर रखा है। फिर कहा कि बोल चाल करते हुए अजल्पन अश्नियात, तो बिना बातचीत किए हुए भोजन करना है। अहसनम अश्नियात, तो हंसते हुए, बातचीत करते हुए हंसते हुए जोर जोर से ऐसे नहीं करना है। और अंत में कहा कि तन मना भुंजीत, तो तन मना कि जो हम भोजन कर रहे हैं तो आंख बंद करके एक बार अंदर अपने झांकना है कि मुझे इस समय भूख है या नहीं है। तो भूख है तो हमें भोजन करना है, और वो फिर इधर उधर देखे बिना एकाग्र मन से उस भोजन का सेवन करना है, तो तब वो ठीक से पचेगा, सही समय पे पचेगा। ऐसा एक विधान है। तो ये मोटी सी बातें ऐसे बताई मैंने कि जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के लिए हैं। अब इसमें एक प्रमुख बात है, वो है प्रकृति। प्रकृति का सिद्धांत है कि व्यक्ति, ये जो शुरू में मैंने कहा कि वात पित्त कफ इनका बैलेंस चाहिए व्यक्ति में, तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति की प्रकृति जन्म से ही तय हो जाती है कि वो किस प्रकृति का व्यक्ति है, कैसी तासीर का व्यक्ति है, कैसा उसका स्वभाव है शरीर का। तो जब ये जन्म से तय हो जाता है तो उसको हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति, हमारे साथ के लोगों को, किसी को फोड़े फुंसी ज़्यादा होते हैं बचपन में, किसी को एसिडिटी की तकलीफ ज़्यादा है, हम उसके साथ जैसा एक ही परिवार में एक जैसा भोजन करते हुए एक को एसिडिटी होती है ज़्यादा परिवार में, तो भोजन तो वो हम जैसा ही कर रहे हैं फिर भी उसको एसिडिटी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी तासीर जो है, वो जो स्वभाव है उसका, वो अलग है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का जो स्वभाव है इसको प्रकृति बोलते हैं। और इसमें 1 से 1.5 घंटा लगता है व्यक्ति की प्रकृति देखने में। तो इसको हमने हेल्थ कार्ड के नाम से कहा कि हर व्यक्ति यदि अपना हेल्थ कार्ड इशू करा ले आयुर्वेद के व्यक्ति के पास जाके कि मेरी ये प्रकृति है, तो उस प्रकृति के अनुकूल उसको पूरी जीवन भर अगर वो आहार विहार अपना चुन ले, पूरी लिस्ट बनवा के उस वैद्य से ले ले कि मुझे पूरी जिंदगी भर किन किन चीज़ों का सेवन करना मेरे लिए अच्छा रहेगा, किन का सेवन करने से मुझे नुकसान रहेगा। तो जैसे पित्त प्रकृति का अगर कोई व्यक्ति है, तो पैतृक प्रकृति के व्यक्ति को फोड़े फुंसी बचपन में बहुत ज़्यादा होंगे, फिर उसको बड़ा होगा तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार का, यानी गर्मी से होने वाले उसको रोग ज़्यादा होंगे। तो फिर जीवन भर उसको बैंगन और ये शिमला मिर्च, किस प्रकार की जो उष्ण चीज़ें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी पूरी एक लिस्ट उसको वैद्य के द्वारा मिल जाएगी। तो ऐसा प्रकृति का निर्धारण भी स्वस्थ रहने के लिए अपने करवा लेना चाहिए। उसको हेल्थ कार्ड हम लोग बोल रहे हैं आजकल।
तो हम उसका प्रकृति का निर्धारण बीमार व्यक्ति का भी करते हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति हमारे पास आया बीमारी लेके, तो उसकी हम प्रकृति देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या थी। तो अगर वो उसको प्रकृति के अनुकूल रोग होता है, कि जो उसको मान लो पैथिक प्रकृति थी और रोग लेके आया, तो बीपी हाई है उसका और पित्त से संबंधित कोई रोग है, तो फिर हम उसकी प्रकृति का उसको बताते हैं कि ये आपको जिंदगी भर इस प्रकार का भोजन करेंगे तो ये दोबारा आपको रोग नहीं होगा, इस बार तो दवाई से उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन प्रकृति का ध्यान रख के आप करेंगे सारी जिंदगी। तो ये एक है। तो अब ये 3-4 बेसिक प्रिंसिपल हुए कि एक तो दिनचर्या का, एक ऋतुचर्या का, और एक भोजन के जो विधान है कि भोजन कैसे सेवन करना है उसका ध्यान रखना है। जिन वेगों को धारण नहीं करना, जो मैंने गिनवाए ऐसे, तो उन वेगों को धारण नहीं करना, समय से उनका निस्तारण करना है, और प्रकृति का अपनी ध्यान करना है, प्रकृति का असेसमेंट करा के प्रकृति के अनुरूप पूरे जीवन भर अपने को भोजन करना है। तो इतनी सी बात है। सही है, आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े, तो उसकी बात है। फिर जो स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद में कही, वो समदोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते। रजनीकांत जी समय बता देना मुझे। हेलो सर समय 10 मिनट का है। 10 मिनट और है ना? हाँ सर, मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है। तो ये जो कहा स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा आयुर्वेद ने इतने वर्ष पहले कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते। तो ये जो कहा WHO ने शुरू में, जो WHO मानता था कि स्वस्थ व्यक्ति कौन, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ कोई व्यक्ति यदि है तो उसको स्वस्थ बोलते थे। हमारी परिभाषा में शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना, उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय यानी कर्ण का विषय अच्छा स्वर उसको सुनाई दे, जीवा का विषय अच्छा रस उसको सेवन करने को मिले, आनंद उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों में हो, तो ऐसा सुख पूर्वक उसको विषयों का सेवन वो करे, तो ऐसा ये भी सुख का एक प्रकार है। तो इसकी भी कल्पना की, और साथ में सोशली हेल्दी, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, इसकी भी आयुर्वेद ने बात की। तो इतने प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ होगा तब उसको हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ मानते हैं। तो ये जो परिभाषा मैंने बोली, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थित्य विधीयते, तो ये जो इसमें सारा कुछ इतना कवर होता है। तो WHO की परिभाषा यदि आप देखेंगे तो उसमें बाद में चल के पूरा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ऐसा ये 3 उसमें जोड़ी, बाद में स्पिरिचुअल वेलबींग भी किया, तो ऐसा करके उसमें जोड़ा गया। तो ये जो एक पहलू है कि पूरा यानी केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना इतना ही काफी नहीं है। अब बाकी रूप से जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे, तो सद्वृत्त का मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया कि आयुर्वेद में सद्वृत्त का वर्णन कर रखा है। उसमें यहां तक लिखा कि ये जो रोगी आपके पास आएगा तो पुत्रवत आचरियेत, तो उसको पुत्र के समान आपको उसकी पीड़ा समझनी है। अगर व्यक्ति के अपने बेटे को जब कोई कुछ कष्ट होता है तो वो किस प्रकार से दुखी हो जाता है बच्चे के अपने कष्ट को देख के, तो वैसा इस रोगी के कष्ट को देख के आपको वैसा कष्ट अनुभव करते हुए उसके कष्ट का निवारण करना है। तो पुत्रवत आचरियेत ऐसा निर्देश वैद्य के लिए भी दिया। तो इस प्रकार की सद्वृत्त, आचार रसायन इसको बोलते हैं, तो इसका वहां पे वर्णन कर रखा है। तो इससे आदमी जब इस प्रकार का आचरण करता है तो वो आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसे स्वस्थ अनुभव करता है अपने आप में। तो ये कुछ बातें हैं। फिर इसमें वेदना एक शब्द है, वेदना यानी योग और मोक्ष की बात करते हैं अब थोड़ी सी। तो योग के लिए कहा कि यानी योग जो है वो मोक्ष का प्रवर्तक है, योग मोक्ष प्रवर्तक, और योग कर्मसु कौशलम, और योग चित्तवृत्ति निरोध, ऐसा करके जो योग के बारे में कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ये योग है। और कर्म, जो भी व्यक्ति कर्म करता है उन कर्मों को पूरी स्किल के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ करना,
ये योग की स्थिति है। और योग जो है वो मोक्ष की तरफ प्रवर्तन करता है व्यक्ति का। तो योग मोक्ष प्रवर्तकः। तो मोक्ष क्या है? तो मोक्ष जो हम लोग समझते हैं कि इस दुनिया से छुटकारा, उसका पुनर्जन्म ना हो, इस प्रकार का कंसेप्ट जो मोक्ष का है। लेकिन आयुर्वेद के संदर्भ में यदि उस मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष है योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदना नाम अवर्तनम। तो ये परिभाषा आपने आयुर्वेद में दी कि योग और मोक्ष की स्थिति में जब व्यक्ति होता है तो उसको किसी भी प्रकार की वेदना का अनुभव नहीं होता। तो वेदना क्या है? तो वेदना सुख रूपी वेदना और दुख रूपी वेदना, ऐसे वेदना दो प्रकार की। वेदना यानी व्यक्ति को की अनुभूति, सेंसेशन उसको। तो अगर उसको कोई कांटा चुभा रहा है आंख बंद करके ऐसे, तो वो जो कष्ट हो रहा है उसको कांटा चुभने से, तो ये भी एक प्रकार की वेदना है। और कहीं उसको गर्मी में कोई शीत स्पर्श अगर कुछ करा दे तो ये जो उसको शीत का स्पर्श हुआ, ये सुख का अनुभव हुआ, तो ये सुख रूपी वेदना है। तो सुख रूपी और दुख रूपी वेदना दोनों प्रकार की वेदनाएं हैं। तो आयुर्वेद में कहा कि देखिए जो सुख रूपी वेदना है उसका भी अत्यंत अगर आप सेवन करते हैं तो उसका भी त्याग करना है। तो त्याग पूर्वक उसका सेवन करना है सुख का। और जो दुख है, दुख को भी उससे निवृत्ति पाने के लिए मोक्ष की कल्पना की गई, उसके लिए मार्ग बताए गए। और मार्ग जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बताए वो मैंने पहले कहा कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, नववेगन धारणीय और जो सद्वृत हैं, तो इन सब का पालन करते हुए व्यक्ति, और जो भोजन के विधान है, तो भोजन किस प्रकार से सेवन करें, तो इन सब का पालन करते हुए व्यक्ति हेतुओं का सेवन नहीं करता। तो हेतुओं का जब सेवन नहीं करता तो फिर उसको दुख, इसकी दुख रूपी जो वेदना है उसकी अनुभूति नहीं उसको होती। उसकी अनुभूति नहीं होती तो फिर वो मोक्ष की तरफ चला जाता है व्यक्ति। तो ऐसे यानी मोक्ष का अर्थ हुआ कि ये जो हमें कष्ट होता है उस कष्ट से छुटकारा, ये मोक्ष है। और बहुत अगर सुख में व्यक्ति जाता है, बहुत जिसको विलासिता बोलते हैं, तो उससे भी छुटकारा पाना ये भी मोक्ष है। तो दोनों प्रकार की वेदनाओं से छुटकारा पाना। तो सर्वेषां वेदना नाम अवर्तनम, तो बिल्कुल स्थित प्रज्ञ होके रहना व्यक्ति का, तो वो स्वस्थ की परिभाषा है, वो मोक्ष की अवस्था है। तो ऐसा आयुर्वेद ने कहा। तो इतनी बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सभी श्रोताओं को अंत में एक निवेदन मैं करता हूँ कि ये जो रोग मैंने कहा कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के रूप में आजकल बहुत सारा एक ग्रुप है बहुत रोगों का। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करके बहुत सारा हम सुनते होंगे। तो उसमें बहुत सारे रोग हैं, जैसे थायराइड है, पीसीओडी करके मान लो है, डायबिटीज मिलाइटिस है, फिर यूवीआइटिस करके आंखों का एक रोग है, फिर आजकल यूरिक एसिड बहुत, गाउट की स्थिति बहुत सारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे जिन रोगों में जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ऐसों में जो एलोपैथी की दवा एक बार शुरू हुई और वो पूरी जिंदगी भर लेनी पड़ती है, तो ऐसे रोगों में आयुर्वेद बहुत अच्छे से अपनी पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से इनका इलाज अच्छे सफलतापूर्वक होता है। तो आप लोगों को यदि इसकी जानकारी ना हो तो कृपया कहीं भी अगर इस प्रकार का रोग अपने आसपास किसी को है तो वो अच्छे किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके इनकी चिकित्सा करवा सकते हैं और ये ठीक होते हैं। मैं बात अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि दो प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में बता रखी है, शोधन और शमन। तो हम क्या करते हैं कि पूरे कहीं क्लिनिक पे गए तो वहां पे केवल औषधि से चिकित्सा करवाना चाहते हैं, वो यानी टाइम नहीं है हमारे पास वहां पे जाना स्पेयर करने को। तो हम लोग जाते हैं क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल में गए, ओपीडी में गए, ओपीडी में कोई रोग दिखाया, उसकी दवा लिखवाई और आ गए। और उसको 8 दिन 15 दिन महीना लिया तो थोड़े ठीक हो गए और फिर छोड़ देते हैं उस दवाई को। तो उससे क्या, फिर हम बोलते हैं कि भी दवाई ली थी, थोड़े दिन आराम रहा जब तक दवा ली और फिर से वही हो गया। तो इसलिए क्या करनी फिर बार बार लेके, तो एलोपैथी वाली कम से कम पूरी जिंदगी ले तो रहे, तो बीच में रोग बढ़ता घटता तो नहीं। तो ऐसा करके हम कहीं ना कहीं फिर, तो वहां पे गलती ये हो रही है अपने से कि हम उसकी जो शोधन चिकित्सा है, जो रोग शरीर में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्रोनिक हो जाते हैं, तो उन क्रोनिक रोगों को से बचने के लिए अपने को शोधन चिकित्सा लेनी पड़ती है, जिसको हम पंचकर्म के नाम से आप टीवी पे कहीं सुन रहे होंगे। तो जो पंचकर्म चिकित्सा है वो शरीर की शोधन थेरेपी है। तो अंदर से वो बहुत सारे जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं,
उन सबको रिमूव करने का एक प्रोसेस है बॉडी से वो। तो इसलिए उनको रिमूवल करके फिर जो शुद्ध शरीर है उसमें यदि ओपीडी की दवा आप करते हैं कुछ समय तक, तो ठीक होने की पूरी संभावना रहती है। बल्कि कुछ रोगों में तो, जैसे किसी को सोरियासिस है, तो सोरियासिस भी ठीक होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सोरियासिस में वही 6 महीने तक दवा ली, एक बार ठीक हो गए, फिर हम छोड़ देते हैं वो दवाई। तो ऐसे रोगों में साल में 2 बार, मार्च अप्रैल का महीना एक रहता है जिसमें कफ का प्रकोप, आयुर्वेद बोलता है कि कफ का उसमें प्रकोप रहता है। एक शरद ऋतु यानी बरसात के बाद जो सीजन आता है सितंबर अगस्त के आसपास, तो अगस्त जुलाई में, जुलाई से शुरू हो जाता है, सितंबर से पहले पहले, तो उस समय पित्त का प्रकोप होता है पूरे शरीर में, तो तब शोधन करवा लें। और एक मार्च अप्रैल में शोधन ऐसे रोगों में, जो लंबे रोग हैं, तो उनमें 3-4 साल तक साल में 2 बार शोधन थेरेपी लेते हुए फिर शमन चिकित्सा, वो जो दवाई है वो लेता रहे, तो व्यक्ति बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो ऐसा पूरा अनुभव के साथ मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। तो बहुत लंबी, पूरी जिंदगी भर दवाई खाने की जरूरत नहीं, एक बार आयुर्वेद के पास आप जाइए तो काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरा, जो रजनीकांत जी ने एक बात कही थी कि अब ये समय कोविड ने, और इससे पहले भी हम तो बोल रहे थे, पिछले 5 साल से बोल रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक पैथी है उसको राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति ऐसी वो घोषित हो, तो हम आपस में बातचीत शुरू करें, सरकार तक भी आवाज़ जाएगी। तो अगर ये इस सरकार में राष्ट्रीय पैथी घोषित हो जाती है तो अच्छा रहेगा आयुर्वेद के लिए, अपने समाज के लिए। और कोविड जैसी बीमारियां नई नई जब आएंगी तो उनका हमें डर नहीं रहेगा। तो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो हमारी बेसिक जो थॉट्स हैं भारतीय चिंतन के, तो भारतीय चिंतन धारा, उसको एक संबल मिलेगा, उसको एक सहारा मिलेगा, और पूरा दुनिया को वो लीड करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सबके माध्यम से एक ये प्रयास यदि होगा कि भी हम स्वयं भी आयुर्वेदिक चिकित्सा लें और औरों को भी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रेरित करें उनको लेने के लिए, और कहीं अगर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं इस बारे में कि राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति वो घोषित हो, तो ये अच्छा रहेगा। इतनी बात के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। सभी को एक बार फिर से प्रणाम, सादर वंदन। Thank you so much, Honorable Vice Chancellor Sir, for such a thoughtful, insightful, and informative session. Your lecture has definitely made us feel proud that Ayurveda offers a remedy for this disease, which is otherwise taken as an incurable disease. Your lecture has broken many myths, and we all feel that we have expanded our knowledge on the issue under focus. Thank you so much, sir. It was a blessing to hear from you once again. Now, I request Dr. Ekta Anand to please ask chosen questions from our coveted speaker of the day, Dr. Baldev Kumarji. Over to you, Dr. Ekta Anand. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. There are so many questions asked by the participants because people are scared due to novel coronavirus, which is storming around the globe. The government of China, the United States, Iran, Italy, meanwhile, have all badly fumbled their responses, some of them lying about the outbreak. So people want the natural ways which can cure them. So there are so many questions asked by the participants, but I think questions are almost same, sir. Few of them are. The first question is asked by Dr. Varun Verma. आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम कौन कौन से हैं और कौन सा ऐसा काढ़ा है जो पीना चाहिए जिससे कोरोना वायरस का रोग ठीक हो सकता है? अभी तो जैसे मैंने कहा, षडंग पानीय करके जो काढ़ा है उसका ज्वर में भी निर्देश कर रखा है, तो इसलिए इसी का प्रचलन बढ़े तो अच्छा रहेगा। और लगभग सभी स्टेट्स में, गोवा में, केरल में, इन सब में भी उसी का अनुसरण कर रहे हैं सब लोग। तो षडंग पानीय ऐसा बाजार में उपलब्ध भी है पहले से, तो उसका सेवन करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। सर, एक
नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल कुमार जी की तरफ से। कोविड-19 अगर जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है वो भी इस दवाई का प्रयोग कर सकता है, काढ़ा पी सकता है अपनी दिनचर्या में? उसके लिए जहां भी हॉस्पिटल में दवाई हमारी चल रही है तो हमने वहां के पूरे जो हेल्थ वर्कर हैं, कोई वहाँ प्लम्बर भी, स्वीपर भी है या डॉक्टर्स हैं, उन सबको हमने यही दवा 2-2 गोली 3 बार तो हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो यही दवा हमने उनको 1-1 गोली रात को वो ले लें और ये काढ़ा दिन में 2 बार सुबह शाम 1-1 कप पी लेते हैं, ये प्रिवेंशन के लिए काफी है। तो षडंग पानीय काढ़ा 1-1 कप उसका सुबह शाम, और जो ये महासुदर्शन घनवटी है वो 1-1 गोली भी रात को लेंगे सोते समय, तो ये प्रिवेंशन के लिए सफिशिएंट। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन है आस्क्ड बाय मैडम पायल। आयुर्वेदा को WHO ने रिकॉग्नाइज किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO तो पहले से ही जो ट्रेडिशनल पैथीज हैं उन सबको रिकॉग्नाइज तो करता ही है, और वहाँ पे बहुत सारे जो यानी उनका जो सेंटर है जिनेवा में, वहाँ पे अपने इंडिया से भी बहुत सारे लोग WHO में काम करने के लिए जाते हैं भारत की तरफ से, तो वो तो पहले से है प्रचलन तो वहाँ पे। लेकिन अब इस कोविड के कारण पूरी दुनिया भर में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का नाम बढ़ा है और आयुर्वेद की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि कोई सोल्यूशन यहीं से मिलेगा, तो इस प्रकार का उसका प्रचार काफी बड़ा है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क्ड बाय डॉक्टर रजनी सूद। सर ये आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या एलोपैथी मेडिसिन के साथ हर रोज ली जा सकती हैं? जब कभी जैसे किसी को डायबिटीज मिलाइटिस है और उसकी 450 के आसपास ब्लड शुगर रहती है, तो वो जब हमारे पास आते हैं चिकित्सा के लिए तो हम उनको ये कहते हैं कि आप एलोपैथी दवा के साथ साथ ये आयुर्वेदिक दवाई ले लें ऐसे, और जैसे ही ये ब्लड शुगर कंट्रोल आ जाएगी तो धीरे धीरे इसको फिर छोड़ देंगे। तो ऐसा एक शुरू में, यानी जिस स्थिति में रोगी हमारे पास आता है उस समय जो एलोपैथी दवा उसको चल रही है, चाहे वो थायराइड की दवा हो, बीपी की दवा हो, तो हम उसको बंद नहीं करते एक, तो धीरे धीरे जब वो स्थिति संभल जाती है तो फिर वो आयुर्वेदिक दवाइयों पे शिफ्ट हो जाते हैं अच्छी तरह से, केवल आयुर्वेदिक दवा से ही ठीक रहते हैं। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अनीता अग्रवाल जी का कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी इस कोविड के संदर्भ में पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो इम्यूनिटी के लिए यदि आप देखिए कि ये जो अभी कोविड की, मान लो किसी को इन्फेक्शन हुई, कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया, तो वो उसकी इम्यूनिटी डाउन है ऐसा ये जो कहा जा रहा है, तो इसको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि कहा जाए तो वो जो मैंने कहा कि व्यक्ति की प्रकृति उसमें वातपित्त का इम्बैलेंस होना ये कारण है। ये हमारे 6 ऋतु में बताइए, 6 ऋतुओं में मैडम ये माइक अगर म्यूट करवाएंगे सबके तो बीच में आवाज आ रही है, शोर आ रहा है बीच में काफी। तो इम्यूनिटी की बात करें तो केवल वात पित्त कफ की यदि बात करें तो उसका बैलेंस करने से फिर वो इम्यूनिटी की स्थिति अच्छी हो जाती है, व्यक्ति बीमार नहीं होता, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होती। यानी कोविड का ही अगर ये देखा जाए कि कोविड बाहर उसको एक तो इन्फेक्शन करने से रोकना, और यदि वो शरीर में एंटर हुआ तो शरीर की सेल्स उसको एक्सेप्ट करके मल्टीप्लाई करने का जो मौका देती हैं, तो ये जो अंतर मल्टीप्लाई करने का मौका दिया, तो इसको आप 2 एंगल से इम्यूनिटी कम है उसकी ऐसे बोल सकते हैं। आयुर्वेद की भाषा में इसी को बोलना हो तो उसके बाद पित्त कफ अंदर वो बैलेंस नहीं है, तो उसको हम बैलेंस करते हैं तो फिर वो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि बाहर से ये जो कोविड एंटर हुआ भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती सेल्स और उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देती। तो इतना सा अंतर है बोलने का केवल। तो इसलिए ये जो षडंग पानीय है और जो महासुदर्शन घनवटी है, तो ये इम्यूनिटी भी व्यक्ति की रेज करेगी, उसको इन्फेक्शन नहीं होने देगी, ऐसा इसी का उपयोग हो सकता है उसके लिए भी। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन है कि हम ये आयुर्वेदिक मेडिसिन नॉर्मली कहाँ से ले सकते हैं? बाय डॉक्टर निधि शर्मा।
आयुर्वेदिक दवाइयां, जैसे मैंने कहा कि सभी जो आयुर्वेद दवाइयों के स्टोर हैं सब पे ये बड़ी इजीली मिलती हैं। दोनों दवाइयां षडंग पानीय और महासुदर्शन घनवटी आराम से अवेलेबल हैं। सभी कंपनियां लगभग इसको बनाती हैं। सर एक क्वेश्चन है अविनाश सर जी की तरफ से। कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी हैं ये हम बिना डॉक्टर की सहमति से ले सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप, मैंने जो प्रकृति की बात की, तो यदि व्यक्ति दूध का सेवन भी कर रहा है तो दूध तो अमृत का है अपने यहाँ, तो दूध का सेवन भी यदि कोई व्यक्ति कर रहा है और वो कब प्रकृति का व्यक्ति है और उसको कोई स्किन के कुछ रोग हैं, तो ऐसा यदि व्यक्ति है तो फिर उसको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दूध को तो जब अमृत का है तो उसका भी सेवन आयुर्वेद मना करता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो बिना सलाह के लेनी चाहिए। तो दवाइयां तो पूछ के ही डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन है हरदीप राय शर्मा जी की तरफ से। कौन से ऐसे घर पर इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं? अगर इसी संदर्भ में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कोविड के लिए अभी च्यवनप्राश की बात भी की, ब्रह्मरसायन की बात हुई, पिपली की बात हुई, त्रिकटु की बात हुई, फिर उसमें अश्वगंधा की बात भी कर रहे हैं, मुलेठी की बात कर रहे हैं, एक गोल्डन मिल्क की बात कर रहे हैं कि मिल्क में ऐसे हल्दी घोल के ऐसे वो ले सकते हैं। तो ये सारी दवाइयां हैं जिनको इम्यूनिटी बूस्टर कह के अभी प्रचारित किया जा रहा है। उसमें आंवला है, जटामांसी का प्रयोग भी कुछ लोगों ने किया, दालचीनी है, काली मिर्च है, गिलोय है। तो ऐसी ये कुछ दवाइयां हैं। लेकिन मैं फिर भी, मेरा ये कहना है कि जैसे इनका आप सेवन करें तो प्रकृति के अनुकूल करना चाहिए। प्रकृति अपनी एक बार वैद्य की सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। च्यवनप्राश है तो च्यवनप्राश अगर किसी को भूख ही ठीक से नहीं लगती, अग्नि बिल्कुल मंद है, तो च्यवनप्राश उसको फायदा नहीं करेगा। ऐसे ही अश्वगंधा की बात की जा रही है तो अश्वगंधा भी थोड़ी पचने में, क्योंकि ताकतवर दवा है, वो इम्यूनिटी को रेज तो करती है लेकिन वो पचने में थोड़ी भारी है। तो जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो फिर अश्वगंधा लेगा तो उसकी भूख और मरेगी, तो उसको वो ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो जिसको भूख कम लगती है उसको इनमें से, जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, पिपली है, तो ये काम करेंगी उसमें, क्योंकि वो भूख लगाएंगे। ऐसे षडंग पानीय है, ये भूख लगाएगा व्यक्ति को। तो इस प्रकार से, यानी दो मोटी मोटी कैटेगरी अगर करें कि एक तो वो व्यक्ति जिनको भूख नहीं लगती, तो उनको तो पिपली, त्रिकटु जिसको हम बोलते हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, षडंग पानीय है, ये ठीक रहेगा। एक ऐसे व्यक्ति की जिनको भूख खूब अच्छी लगती है तो फिर वो अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, गिलोय का सेवन कर सकते हैं, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसे करना चाहिए। हेलो, थैंक धन्यवाद सर। और अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मनीषा बहल की तरफ से। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हम रोजाना क्या ले सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में? इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक मोटा सा बात बता देता हूँ कि किसी भी रोग के लिए आप ऐसी दवा पूछना कि भी इसमें क्या दवा ले सकते हैं, तो वो आयुर्वेद में फिर से उसका प्रिंसिपल ये है कि आयुर्वेद में इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, व्यक्तिगत अप्रोच है आयुर्वेद की। कि अभी कॉन्स्टिपेशन की बात करें कि यदि कॉन्स्टिपेशन आंत में खुश्की के कारण है, रुक्षता बोलते हैं हम, रुक्षता के कारण यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें उसको घी अगर दूध में डाल के रात को पिएंगे तो उससे लाभ मिलेगा। और यदि वहां पे कुछ पित्त की अधिकता है तो पित्त की अधिकता है तो फिर अविपत्तिकर चूर्ण करके निशोथ का प्रयोग उसमें करेंगे तो फिर लाभ रहेगा। तो इस प्रकार के, यानी अलग अलग अवस्था में कॉन्स्टिपेशन के एक कारण नहीं है। अगर उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम है आंत की तो हर्ड जो है वो काम करेगी। तो ऐसे यदि वहां अल्सरेशन थोड़ी हुई है, शोथ कुछ हुआ है, तो ये जो इसबगोल है तो इसबगोल काम करेगा। तो ये अपने से डिसीजन नहीं लेना। इस कॉन्स्टिपेशन यदि है तो चिकित्सक के पास जाके ही बताना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम हो सकता है, बाकी शरीर में कुछ और चीजें होंगी, तो उनको ठीक करने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी अपने आप।
तो केवल कॉन्स्टिपेशन की दवा ना तो बाजार से लेनी, ना ऐसे पूछनी, कहीं टीवी पे भी देख के नहीं लेनी चाहिए, और जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मुझसे पूछ के भी कॉन्स्टिपेशन की दवा नहीं आपको लेनी चाहिए। अगर मैं मान लो 4 दवाइयों के नाम बताता हूँ तो मेरी गलती है कि मैं आपको बता नहीं रहा, कि ऐसा बताना गलत है। धन्यवाद सर, बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। सर बस एक आखिरी प्रश्न है मैडम कोमल रानी की तरफ से। अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो तो उसको क्योर करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है? मेडिसिन कौन सी है ये नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको कि अगर वो छोटी स्टोन है 3, 4, 5, 6 mm तक की है तो वो निकल जाती हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से जल्दी ही। जब बड़ी हो जाती है 15 mm की, 18 mm की, ऐसी भी रहती हैं, तो उस साइज तक पहुंचने पे यदि अपने को कोई सिम्टम नहीं है, पेट में दर्द वगैरह, अफारा, कुछ भोजन सेवन करने के बाद उसको कुछ पेन वगैरह रहता है, तो ये सब अगर सिम्टम उसको नहीं है और वो साइलेंट है, तो आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हुए ठीक रहा जा सकता है जीवन भर, कि उसको उसका पेन नहीं होगा, वो पड़ी रहेगी। लेकिन यदि साथ में सिम्टम भी हैं तो बड़ी यानी 18 mm की है तो उसको ऑपरेट करवा देना चाहिए, और सिम्टम नहीं है तो आयुर्वेदिक की दवा से उसका चल सकता है ऐसे, और छोटी है तो वो निकल जाती है आयुर्वेदिक दवाइयों से। अब दवाई फिर से अगर कोई पूछ रहा है कि दवाई क्या दें, तो दवाई क्या दें ये गलत है पूछना भी और बताना भी, क्योंकि हर व्यक्ति की दवा अलग अलग चलती है। यानी अगर वो इसका गाल स्टोन का अगर केस है तो 10 केस है मान लो मेरे सामने, तो 10 की मैं पहले प्रकृति देखूंगा, उसकी मैं बचपन से लेके अब तक का, जब वो जिस स्टेज में है उस अवस्था तक को, उसको कौन कौन से रोग हुए जीवन भर, तो उससे मुझे उसका एक समझ में आएगा कि इसकी तासीर पूरे शरीर की ऐसी है, और इसको इस कैटेगरी के रोग ज्यादा होते हैं तो मुझे ये दवाई इसके लिए देनी पड़ेगी, तो वो दवाई उसको फायदा करेगी। दूसरे व्यक्ति को गाल स्टोन के दूसरी दवा फायदा कर सकती है अगर वो अलग प्रकृति का व्यक्ति है। इसलिए व्यक्तिगत अप्रोच है आयुर्वेद में, यही उसकी खास बात है कि एक ही दवा सबको नहीं चलती आयुर्वेद में, वही सीखने की भी जरूरत है और वही व्यवहार में लाने की जरूरत है उसको। थैंक यू सर, आपके जो भी इंफॉर्मेशन है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नाउ फॉरवर्ड टू यू शैली मैम। Hello. Hello. Now it's time to close this webinar. Now my invitation goes to Madam Principal, Dr. Rajshri Khare, to extend a vote of thanks to all the members in the meeting room. Over to you, Madam Principal, Dr. Rajshri Khare. आफ्टरनून एवरीवन, मैं अपने कॉलेज की तरफ से और अपनी खुद की तरफ से चेंज करूं। सबसे पहले अपने एमपीएन एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट ऑनरेबल मेजर एसपी सिंह सर का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने हमें इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए अनुमति दी। इसके बाद मैं अपनी तरफ से और अपने कलीग की तरफ से डॉक्टर बलदेव कुमार, ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने समय निकाल के हमें आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ शेयर किया। मेरी टीचिंग फैकल्टी, एमपीएन कॉलेज की टीचिंग फैकल्टी का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा सहयोग किया।
ये नॉन टीचिंग फैकल्टी है जो हर पर्दे के पीछे जो हमारा हमेशा सहयोग करती रहती है। इसके साथ ही मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारे पास अभी आईटी सेक्शन नहीं है, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, डॉक्टर शली, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, डॉक्टर एकता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, एंड डॉक्टर विजय चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, जिन्होंने स्क्रीन के पीछे इस पूरे शो को ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट दिया है। And last but not the least, I would like to thank all the participants for their patience hearing. Thank you all once again. Thank you, and stay connected, stay home, stay healthy, and stay safe. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, all the participants. Kindly fill in the feedback form, which is going to be shared on the WhatsApp group. We are going to call this meeting to an end. Thank you so much to all. Good day.